Multitasking is a big myth. There is nothing called multitasking. Big myth. इसका छोटा सा प्रमाण ये है, अभी आप दो मित्रों से दो मोबाइल फ़ोन लो, दो अलग अलग लोगों को फ़ोन करो और दो अलग अलग कानों पे लगा के बात करो. You will not be able to understand both the things simultaneously, can you? But कान तो दो हैं, you should be able to do that. But mind तो एक है ना, it cannot process. So, and there has been enough research which has proved कि जब भी तुम मल्टीटास्किंग की कोशिश करते हो, जिन लोगों ने भी की, तो दो परिणाम होते हैं. पहला, they take more time in completing the task. दूसरा, they make more mistakes. So it is counterproductive. So multitasking is a myth. इसका मतलब ये हुआ कि एक समय पे बस एक ही काम करो क्योंकि तुम वही कर सकते हो. You can't do two things simultaneously. हाँ, कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, जैसे चलते चलते तुम मोबाइल पे बात कर सकते हो. करेक्ट, दो टास्क हो रहे हैं ना इसमें भी, बट इसमें चलना ऑटोमेटिक हो चुका है. योर एक्टिव ब्रेन इज नॉट नीडेड. बट जिस काम में भी एक्टिव ब्रेन की ज़रूरत है वो तुम एक समय में एक ही कर सकते हो. यू कांट मल्टीटास्क. और अपने माइंड को शार्प करने के लिए इफ़ यू प्रैक्टिस वन टास्क एट अ टाइम, it will do wonders to your brain power. One task at a time with full शिद्दत, पूरी attention से. So, लाइफ में नियम ये नहीं है कि मैं मल्टीटास्किंग करूं. लाइफ में नियम ये है कि मैं कितना अटेंटिव हूं. Attentiveness is the game here. Do you understand what I'm saying? What is the game? एक एक्सपेरिमेंट करें अटेंटिवनेस पे अभी. हाँ, should we do an experiment? मैजिकल एक्सपेरिमेंट. ओके, नमस्ते की तरह आप अपना ब्रिंग योर हैंड्स क्लोजर लाइक नमस्ते. या नो, सॉरी, दोबारा से शुरू करते हैं. अपने हाथ ऐसे करो, यहाँ दो लाइनें हैं ना हाथ पे, इन दोनों लाइनों को मिला दीजिए. मिल गए? अब हाथ फोल्ड कर लीजिए. नमस्ते हो गया. नाउ वॉच योर फिंगर्स, टिप ऑफ योर फिंगर्स, बड़ी उंगली के टिप ऑफ योर फिंगर्स. वॉच इट. यू विल सी वन फिंगर इज लिटिल लॉन्गर देन द अदर. यस, हाँ, one finger is little longer than the other, right? Okay, remove the hands now. Takes your hands up, vibrate them like this. Okay, नीचे आ रहे, नीचे ले आओ. फिर से रेखाओं को मिलाओ. हाथ बंद करो, आंखें बंद कर लीजिए. Close your eyes, close your eyes, close your eyes. Don't open your eyes till the time I ask you to do that. Close your eyes with folded hands. Now with all your mental power, focus on the finger which was smaller. Visualize that smaller finger. Now with your all attention, tell your smaller finger to grow up a little bit. Actually शिद्दत से अपनी उंगली को बोलो थोड़ा बड़ा हो जाओ. Grow up a little bit. Grow up a little bit. पूरी जान लगा के बोल दो अंदर से. Grow up a little bit. Okay, now take your hands up again. You can open your eyes. Take your hands up again. Vibrate. Bring it down. लाइन से लाइन मिलाइए. फिर से जोड़िए. Now watch the finger. Has it grown? Raise your hands if the finger has grown. For about 50% of the audience, the finger has grown, right? और हमने ये less than 30 seconds we've done an experiment on attention. Do you know what has really happened here? Your skin and the tissues on your skin are, your skin is flexible, right? Skin के tissue flexible है, right? Stretch करते हैं ना आप, muscle building करते हो तो फूल जाते हैं वो, right? So the tissues of your skin are flexible. Less than 30 seconds if you tell your tissue to grow, to grow, to grow, at the tissue level, the tissues actually grow a little bit. Your body listens to you. But you have to do it with full attention, and if you do with full attention, the tissues really grow. ये जो आधा थोड़ा सा उंगली बड़ी, actually what has happened, in that instance the tissue grew. वो stretch किया, थोड़ी देर बाद वो वापस अपनी position पे आ जाएगा. It will not remain like that. It will just come back to its own position. But the fact is, तुम जहाँ भी attention डालोगे वो चीज़ grow करने लगेगी.
आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तुम एक्चुअली गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हो, who actually got diseases like cancers, and they started pouring their attention into the cancer and telling cancer to go away, to delete, and they were successful in removing their cancers without medicine. There are tons of examples, written proofs, white paper written in medical journals about such experiments, scientifically proved. You can go and research on that. इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक रिसर्च हुआ, आपको शायद मेरी बात पे विश्वास नहीं हो सकता है ऐसा, बट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पे तो विश्वास है ना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक रिसर्च हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ये बड़ा अद्भुत रिसर्च हुआ वहां पे। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसर्च एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने एक प्रिजन को अप्रोच किया, जेल को अप्रोच किया यूएस में, और एक प्रिजनर था डेथ सेंटेंस पे, उसको फांसी लगने वाली थी। तो इन रिसर्चर्स ने कहा कि इसको तो आप वैसे ही मार दोगे, फांसी तो लगने वाली है, हमने एक नई टेक्निक खोजी है जिससे हम इसको एक इंजेक्शन देंगे, लीथल स्नेक पॉइजन का इंजेक्शन, वेनम। हम इसको एक वेनम का इंजेक्शन देंगे और वो वेनम इतना लीथल है कि ये व्यक्ति 30 सेकंड के अंदर अंदर मर जाएगा, पेनलेस डेथ, देयर इज नो पेन। अथॉरिटीज ने हाँ कर दिया, उस प्रिजनर ने भी हाँ कर दिया कि मेरी मृत्यु तो होनी है, लेट मी डाई अ पेनलेस डेथ। सो दे ब्रॉट दैट प्रिजनर टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। निर्धारित दिन आ गया, सुबह का समय हो गया जब उसको इंजेक्शन देना है। डॉक्टर्स ने उसको इंजेक्शन दिया, एज प्रेडिक्टेड विद इन 30 seconds the person died. But you know what happened? वो जो इंजेक्शन दिया था वो स्नेक वेनम का नहीं था, वो सलाइन वाटर था। सलाइन वाटर समझते, वो जो ड्रिप चढ़ता है। अभी रिसर्च खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, अभी मैजिक तो आने वाला है। तो सबको लगा कि भाई इसको डर लगा होगा कि वेनम का इंजेक्शन है, उस डर से ये मर गया होगा, हार्ट अटैक हो जाता ना डर में। तो उसका पोस्टमार्टम किया गया उस व्यक्ति का। यू नो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने क्या कहा? ही डाइड बिकॉज ऑफ स्नेक वेनम। नाउ दैट्स वेयर द मैजिक इज। जब इसको सलाइन वाटर का इंजेक्शन दिया था तो ये स्नेक वेनम से कैसे मरा है? कैसे मरा होगा वो स्नेक वेनम से? एनीबॉडी? Attention of his mind made the chemical changes and converted the saline water into snake venom. केमिकल कॉम्पोजिशन उस सलाइन वाटर का चेंज कर दिया उसके माइंड की पावर ने। इट्स अ स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट। दैट इज द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। इट कैन चेंज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ योर ब्लड ऑल्सो।